Namaskar students. Today I am going to start chapter number 5, cash flow statement. What is cash flow statement? It is a statement that shows flow of cash and cash equivalent during a specified period. Student, a statement is prepared to see the flow. Flow means the movement of cash and cash equivalent. What is this cash and cash equivalent? Student, in company's terminology, cash is written under the subhead cash and cash equivalent. So here the cash equivalent means the items or the things which are just equal to cash, like cash in hand, available in the office, cash at bank, lying at the bank. Whenever you want the money you can withdraw, whenever you want to deposit you can deposit in any 24 hours. Similarly, there are some short term investment which are known as the current investment or the marketable securities, where the maturity period is 3 months or less than 3 months. Now a question can be raised, then what is the difference between cash book and a cash flow statement? Student, cash book is maintained on day-to-day basis. Cash book is a ledger book, but cash flow statement is prepared at the end of an accounting period. The main objective of the cash flow statement is to find out the various sources of activities from where the cash is generated. Similarly, we want to find out the various uses of where the cash has been used by the business during a specified period. So, business activities are broadly classified into 3 categories. The first category is operating activity, second is investing activity, and the third is financing activities. So, what do you mean by operating activity, students? Operating activity means the principal revenue generating activity. Principal means the main activities which are required to earn revenues, or you can say it includes all those activities which are helpful in ascertaining the net profit or net loss of a business. लाइक मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और सेल करने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हमारी ऑपरेटिंग है और विच वी हैव शोन टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई कैन गिव यू द एग्जांपल लाइक कैश रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और rendering the services to the customer. Similarly, cash paid to the creditors or bills payable, cash received from the commission or payment of the operating expenses like wages, salaries, rent, insurance claim received. Or you can say to manage the office or the showroom, the expenses which have been done, they are related to the operating activities. Investing activities, it means purchase and sale of fixed assets and investment where the purpose is not to resale. So students, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. मीन्स हम बिज़नेस तब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक बिज़नेस में हम कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते. लाइक इन्वेस्टमेंट वी नीड बिल्डिंग, मशीनरीज, फर्नीचर, फिक्सचर्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, बिजनेस को रन करने के लिए और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है. फाइनेंस कैन बी either of the borrowing funds or through the owner's fund. So it includes those activities which results in change in the capital and the borrowings. For example, for collecting the funds, the company has to issue shares, debentures, bonds, or long-term loan can be raised through the banks or the financial institution. Similarly, the payment of the loan, payments of the preference shares, or the redemption of debentures also a part of the financing activity. यानी जब लोन लिया है तो उसकी पेमेंट भी करेंगे. Along with these, if the payment, अगर हमने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है, शेयर्स इशू किए हैं तो उस पर डिविडेंड भी पे करना है. सो दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. रिमेंबर वन थिंग चिल्ड्रन, activities can be changed. It depends on the nature of business. If I am talking about bank or the financial institution, if they are collecting the money from the public in the form of public deposit, or they are making the payment of the interest, receiving the interest, then it becomes their operating activity, because ये उनका day to day activities का काम है.
उनका काम ही लोगों की कलेक्शंस लेना और उस पर पेमेंट करना, लोन प्रोवाइड करना और लोन पर इंटरेस्ट चार्ज करना है. सो फॉर द फाइनेंसिंग कंपनी these activities are considered as operating activities, but for the others they are known as the financing activities. यानी अगर हम कोई और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लोन लेता है या उस पर इंटरेस्ट पे करता है तो वो उसकी फाइनेंसिंग है, बट बैंकिंग कंपनी के लिए ये उसकी बन जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लाइक अ बिजनेस इज परचेजिंग land, this is not the business activity, but if a property dealer is purchasing a land, then it becomes its operating activity. So you have to take care while dividing the activities under the operating, investing or financing. So remember students, for the financial institutions like bank, finance company, mutual funds, etc., if the transactions are related to the purchase and sale of securities, they will be part of their operating activities, not a part of the financing activity. Similarly, cash paid for the interest and cash received for the interest and dividend will also be the operating activity of a financial enterprises. Now we are going to learn the transactions which are not giving impact on the cash flow. Credit transactions are not recorded in the cash flow statement, students. Transfer of profits to general reserve. It means when profits are transferred to the general reserve, there is no movement of cash. So it will not be recorded in the cash flow statement. Issue of bonus shares. We know that the bonus shares are issued without taking money from the existing shareholders. यानी यहाँ पर कैश नहीं लिया जाता. So it will not impact on the cash flow statement. Similarly, when cash is deposited into bank, cash deposit into bank, so they are equivalent to cash. Bank is also a part of the कैश इक्विवेलेंट. यहाँ पे हमारे हाथ में कैश पड़ा है, ऑफिस में कैश पड़ा है या बैंक में कैश पड़ा है, दैट इज इक्विवेलेंट. सो देयर इज नो मूवमेंट. सिमिलरली कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, यानी बैंक से कैश निकलकर ऑफिस में आ रहा है, अगेन वी कैन से नो फ्लो ऑफ कैश. Purchase and sale of marketable securities. Marketable securities also considered in as a cash equivalent. So it means whenever the marketable securities or the current investment are purchasing or selling, it will no impact of cash flow statement. There is no flow of cash, simply you can say. Similarly, writing of bad debts against provision for doubtful debts. यानी जब हम bad debts को provision for doubtful debts से set off करते हैं, then again there is no movement of cash. So the answer of all these transactions are no flow of cash. Now you will learn how to prepare cash flow statement. It is prepared at the end of an accounting period and as per the accounting standard 3, which is issued by ICAI, means the Institute of Chartered Accountant of India. It means as per the introduction of the Companies Act 2013. We have made the two columns for the amount. In the first inner column, details have been written and the final result of detail will be shown to the outer column, that is the final column of amount. So firstly we will start with the cash flow from operating activities. Now you have to choose the items which are related to the operating activities. If there is a inflow means cash coming, it will be added. If there is outflow means where the cash is going, means that will be subtracted in the detail, and the final results of plus and minus will be shown to the outer column. Similarly, the second activity is cash flow from investing activity. Again, the inflow means where the cash is increased, it will be plus, and the items where the cash is decreasing, it will be deducted in the detailed column, and the final result of investing activities will be shown to the outer column. And the third heading is cash flow from financing activities. Where the cash is increased will be added and the activities where the cash is decreased will be deducted. Again, the final result will be in the amount column. Then result of all these three activities. If the result is coming, final result is coming in plus,
means increase in cash, then it will be written as net increase from all the activities. If the result of all the three activities is in minus, you can say decrease, net decrease from all activities. And in this final result, you have to add the opening balance of cash and cash equivalent, which will be given to you in the question. Like if the balance sheet is given to you, suppose balance sheet is given, 2 years figure must be given to you, 2020 and 2019, and here it will be written cash and cash equivalent under the current assets, under the heading of current assets. Suppose it is given that 50,000 and earlier it was given 10,000. So when 10,000, the opening balance, previous year means the opening balance of cash and cash equivalent is added to the net increase, then you will get the closing balance. यानी ये 10,000 प्लस करने के बाद आप रिजल्ट तक पहुँचेंगे 50,000, विच इज़ द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. यहाँ पर आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंस गिवन होंगे, तो यू कैन वेरीफाई योर रिजल्ट. इट मीन्स जो आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, इट मस्ट बी 40,000 बिकॉज 40 + 10 इट विल बिकम 50,000. To prepare the cash flow statement, it is must to understand the items to be shown under the operating, investing and financing activity, because the purpose is to find out from which activities the cash is generating more or in which activities the cash is used more. Accordingly, the company will make the plan or prepares the budget for the future. So today I'm going to tell you how to find out the cash flow from operating activities, means which items to be added to the operating activities and which items will be deducted from the operating activity and the final result of the operating activity. There are two methods of calculating the cash flow from operating activities. First method is direct method and the second is indirect method. Regarding direct method, students, you have learned how to prepare trading and profit and loss account to find out the net profit. So I'm following that way. If you remembered, this side sales and then opening stock, purchases, direct expenses like wages, carriage, factory fuel, power, motive, etc. Then gross profit. Then the next step was gross profit transfer to the profit and loss account. Then afterwards, all the operating expenses like salary, insurance, printing and stationery, depreciation, postage. Then you have learned to calculate the operating profit. Afterwards, after carrying forward the operating profit, non-operating incomes or gain will be added to it and non-operating expenses or losses to be subtracted to get the net profit before tax. So in this way you have learned how to calculate the net profit through by making trading and profit and loss account. But here we have to find out the cash flow from operating activities. When we are talking about operating activities, means which are directly related to the operations of a business, means day to day activities में हमारा कैश का फ्लो क्या हुआ, कैश is increasing or decreasing, how to find out. So here we want only the operating profit. We don't want the non-operating items because non-operating means other than business activities and we want only from the business, directly related to the business activities. Operating में जो हमें प्रॉफिट अर्न हुआ है, सो वी हैव टू कंसिडर दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट. यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आया, हाउ टू गेट, हमने सेल में से ये सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की तो प्रॉफिट आया. प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया. सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड. ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें चाहिए बट कैश फ्लो, उसमें कैश का मूवमेंट कितना हुआ. तो जब हमें कैश का मूवमेंट चाहिए तो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. देयर इज नो आउटफ्लो, देयर इज नो इनफ्लो इन द डेप्रिसिएशन. तो हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन या जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं उन्हें कंसिडर नहीं करेंगे. तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसमें हमारा कैश का मूवमेंट
कितना रहा, नेट इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। यहाँ से आपको सिर्फ नॉन कैश आइटम्स को कंसिडर नहीं करना, देन यू विल गेट द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। व्हाट अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड? एज इनडायरेक्ट मीन्स रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब है? यानी हम ये सारा डायरेक्ट को कंसिडर नहीं कर रहे। फर्स्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, प्लीज टेक केयर। डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, दैट्स वाई यू हैव टू लर्न द इनडायरेक्ट मेथड। अंडर द indirect method, suppose net profit is given to you. So net profit, how net profit will be given? A balance sheet may be given to you. The balance sheet, reserve and surplus. Under the reserves and surplus, net profit is included. So वहाँ से आपको net profit मिलेगा. और if statement of P&L account is given, then through the statement of P&L, net profit will be given to you. So net profit you will start. Now you have to reach to the operating profit. Net profit से आप operating profit तक कैसे मूव करेंगे? जो आइटम्स आपने ऐड करी थी, इट मीन्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और गेन्स जो पहले आपने ऐड करी थी, अब आप उसे माइनस करेंगे, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आपने माइनस किए थे, अब वो इसे आप प्लस करेंगे। यानी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नेट प्रॉफिट आप लेकर चल रहे हैं बिफोर टैक्स, एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स और गेन माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। यानी आपको रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर्ड इन द अकाउंटिंग रेशियो यू हैव लर्नड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी आपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना सीखा था पिछले चैप्टर में, उसमें भी हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया था इनडायरेक्ट मेथड निकालने का। यानी अगर डायरेक्ट से नहीं निकलता तो इनडायरेक्ट रिवर्स प्रोसेस फॉलो करना है। अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद, इस स्टेप तक पहुंचने के बाद, यू हैव टू डिडक्ट द नॉन कैश आइटम्स और नॉन कैश एक्सपेंसेस। वाई? बिकॉज आवर मेन पर्पस इज टू सी द रिजल्ट ऑफ कैश। रिजल्ट मीन्स फ्लो, मीन्स इंक्रीज और डिक्रीज थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं, इसमें ये डेप्रिसिएशन माइनस करके आया हुआ है। डेप्रिसिएशन या जो नॉन कैश आइटम्स हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसमें हमारा कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है और हमें निकालना है फ्लो ऑफ कैश। तो इसीलिए हमें क्या करना है? नॉन कैश आइटम्स को कंसिडर नहीं करना व्हेन यू आर शोइंग द कैश थ्रू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेल यू cash flow from operating activities by indirect method. Indirect method. Which items to be added or subtracted to find out the cash flow from operating activities? It will be started by taking the net profit before tax and extraordinary items. About this net profit before tax and extraordinary item, it is given in the working notes, which I'll tell you later on. Now, in this net profit before tax, you have to add all the non-operating and non-cash expenses. Why non-operating expenses and the non-cash expenses are going to be added? Just now I told you we are following the indirect method. Under the indirect method, in this net profit before tax, we have to subtract the non-operating incomes and gain and adding the non-operating expenses or losses. So non-operating expenses and losses to be added. I have written here, add non-operating and non-cash expenses. Non-cash means like depreciation, I told you. So which are the non-operating and non-cash expenses items? Depreciation. There is no flow of cash, so we have to add the non-cash. क्योंकि पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाला था, उसमें से हमने ये आइटम्स माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाला था। हमें तो उस प्रॉफिट तक चाहिए, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है जिसमें कैश का मूवमेंट हो। तो नॉन कैश आइटम्स तो हमारे प्रॉफिट को ज़्यादा रिड्यूस कर रही हैं, हमें तो एक्चुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए जिसमें हमारा कैश आया। सो डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग, रिटर्न ऑफ, यानी जितनी भी हमारी इनटेंजिबल असेट्स हैं जो कि हम राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का क्या मतलब है स्टूडेंट? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी असेट्स में दी गई हैं
जिनमें अब हमारे पास जब हमने गुडविल परचेज करी या गुडविल क्रिएट करी या पेटेंट्स परचेज करे उस टाइम पे मूवमेंट हुआ था कैश का, बट अभी तो एज इट इज़ बुक्स में ये अवेलेबल हैं, एग्जिस्ट हो रही हैं, तो अब इसमें कोई मूवमेंट ऑफ कैश नहीं है, तो इनसे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। यानी ये सारी चीज़ें हमने कहाँ दिखाई थी, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई थी, जिसे अब हमें कंसिडर नहीं करना। सो दीज आर द इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ वी आर गोइंग टू ऐड बैक in the net profit to reach to the operating profit. Similarly, preliminary expenses. What are the preliminary expenses? They have incurred at the time of formation of a company. लाइक उस टाइम जब हमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया या उसके एक्सपेंसेस हुए, उसके लीगल एक्सपेंसेस, लीगल फ़ी हमने पे करी, उसके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, या कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस बनाया, तो उस टाइम जो भी इनिशियल स्टेज पर कंपनी के एक्सपेंसेस हुए जिन्हें हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और राइट ऑफ करने से क्या होता है, हमारा ये सारी आइटम अगर हम इस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ और गुडविल रिटर्न ऑफ, इनसे हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। तो हमें तो एक्चुअल वो प्रॉफिट चाहिए जिससे हमारा कैश पे इम्पैक्ट पड़ा हो, जिसमें हमारा कैश का मूवमेंट हुआ हो। इसीलिए हम उन सारी आइटम्स को जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं, हम वापस से क्या कर रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, यू नो द अंडरराइटिंग कमीशन which are given at the time of issuing the shares to the underwriters. So this time again we are writing off this expense, discount on issue of shares and debenture. जब कंपनी ने डिस्काउंट दिया होगा, शेयर और डिवेंचर्स कोई डिस्काउंट दिया होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रॉफिट में हमने उसे रिड्यूस कर दिया, उसमें कोई कैश का मूवमेंट नहीं हुआ। सिमिलरली शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट साइड पे दिखाते हैं, बट क्योंकि इनका कैश मूवमेंट नहीं है, ये नॉन कैश आइटम्स हैं, इसलिए हम इन्हें वापस से ऐड कर रहे हैं ताकि हम वो एक्चुअल प्रॉफिट निकाल सकें जिसमें हमारा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इट मीन्स जब डिबेंचर्स की रीपेमेंट करते हैं प्रीमियम पे, ज़्यादा अमाउंट पे हम पेमेंट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी डिबेंचर्स की पेमेंट या डिबेंचर इशू करना वैसे भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। सो वी हैव टू ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, सो लॉस इज अ नॉन ऑपरेटिंग item. Interest on borrowings, we are talking about borrowing means debentures, borrowing means loan, any kind of the loan. If the interest is paid whether on the short term loan or the long term loan, this is again a financing activity, फाइनेंसिंग का एक पार्ट है, फाइनेंसिंग है, इट मीन्स दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये हमारा बिजनेस में होने वाला एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे डे टू डे एक्सपेंस नहीं है जो कि बिजनेस को चलाने के लिए मस्ट है। ये तो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कंपनी ने लोन लिया और उस लोन पे कंपनी अगर इंटरेस्ट पे करती है तो ये माना जाता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो नॉन कैश आइटम्स or non-operating expenses are to be added to find out the net profit before tax. Then next thing is less non-operating incomes. Which are the non-operating incomes? Profit on sale of fixed assets or investment, interest received on investment. दिस इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब उसमें अगर इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और इन अनदर वे यू कैन से द नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस से होने वाली इनकम्स ये नहीं है। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव, इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस से होने वाली नहीं है। देन रेंट रिसीव, अगर हम बिल्डिंग को रेंट पर दे देते हैं तो जो उससे आने वाला रेंट है वो भी एक हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी बिजनेस से होने वाली इनकम नहीं है। देन आफ्टर डिडक्टिंग द नॉन ऑपरेटिंग इनकम you will reach to the operating profit, but this operating profit is before working capital changes. Why we are considering the working capital here? Because working capital is also a part of the operating activities. Working capital means current assets and current liabilities. Current assets which are used
to run the day-to-day activities, day-to-day operating activities of the business. Similarly, current liabilities which are to be paid during the operations of a business. So working capital means current assets or current liability. Current assets, if the current assets are decreasing, they will be added, but if the current assets are increasing, they will be deducted. What does it mean? Students, current asset decrease, इसका क्या मतलब? Current asset decrease, what does it mean? Why we are adding the current asset decrease? See, suppose in a balance sheet you are giving 2 years figure 2020 and 2019. Debtors are given to you. Debtors means current asset. Debtors given 40,000 and last year it was given 50,000. What change is coming in the debtors? 50 to 40,000. It means decrease by 10,000. What does it mean decrease by 10,000? Debtors means from whom the cash is to be taken. If the debtors are decreasing, it means the cash is coming by 10,000. अगर हमारे डेटर्स 10,000 से डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब अनदर फॉर्म यू कैन से कि हमारे पास कैश आ रहा है. इनफ्लो ऑफ कैश इज बाय 10,000. सो इनफ्लो मीन्स प्लस. इनफ्लो मीन्स प्लस. सिमिलरली करंट लायबिलिटी इंक्रीज इज एडेड. इंक्रीज मीन्स यू आर टेकिंग लोन. लोन आप ले रहे हैं तो वो इनफ्लो ऑफ कैश है. इनफ्लो मीन्स कैश इंक्रीज्ड. And current liability decrease means you are making payment of loan or the creditors payment, bills payable payment. Payment जब आप कर रहे हैं तो कैश आपका outflow हो रहा है. Outflow means minus. So we have to consider plus or minus according to like the cash is coming plus, cash is going minus. जहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है प्लस कर रहे हैं, जहाँ पे कैश डिक्रीज हो रहा है वहाँ हम माइनस करें. नाउ इन दिस वे यू विल गेट द कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दिस तो फाइनली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश आया उसमें से फिर टैक्स पे किया जाएगा. अब टैक्स जो पे किया जाएगा ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई रिफंड दे रखा है तो उस रिफंड को माइनस करके जो एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स हुई है वो हम पेमेंट करें. पेमेंट मीन्स आउटफ्लो ऑफ कैश. फिर से कैश डिक्रीज हो जाएगा टैक्स पेमेंट करने से. इसके बाद हम लेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम. नाउ व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम? Again, which are not related to the activities, business activities, like amount received from the insurance claim. ये हमें बार बार होने वाला अमाउंट नहीं है. कभी रेयरली कोई क्लेम आ जाता है, कोई लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, उससे हमें अगर इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट रिसीव हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम. तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे. किस तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है? जैसे कि हमें कॉम्पनसेशन देना है. कॉम्पनसेशन कौन सा देना है? कोई इम्प्लॉई है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, यानी टाइम आने से पहले वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, तो कंपनी जो उसे कॉम्पनसेट करेगी उसके बेनिफिट्स, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस. ये आइटम्स बहुत रेयरली क्वेश्चन में एक तरह से ना के बराबर आपको आइटम्स दी होंगी, तो इस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द फॉर्मेट. So incomes extraordinary plus extraordinary expense minus, then you will reach to the final answer, final result of cash flow from or used in operating activity. अगर आपका रिजल्ट प्लस में आ रहा है, प्लस मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट है, तो आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम operating activities. If the result is coming in negative means you will write cash flow used in operating activities. So keep in your mind the entire items which are to be considered to reach to the final result of cash flow from operating activities. अगर ये items आप learn कर लेते हैं तो बेटर. अगर नहीं लर्न कर पाते हैं देन डू प्रैक्टिस. आइटम्स देखते जाइए कौन कौन सी आइटम्स हमारी हैं जो हमें यहाँ कंसिडर करनी है. पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ प्लस और माइनस का है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नीड टू कीप द आइटम्स इन योर माइंड विच इज टू बी टेकन हियर. नाउ वर्किंग नोट्स. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं कि बिफोर टैक्स तक कैसे पहुंचा जाए. सी हियर, note down. Working notes, net profit before tax and extraordinary item. Start with the net profit for the year which will be given to you in the question. 2 years figure will always be given to you in the company's financial statement. So
लास्ट ईयर फिगर और द करंट ईयर फिगर। करंट ईयर फिगर, सपोज आपको क्वेश्चन में सपोज स्टूडेंट ये दे रखा है 2020 and 2019. Current year figure will be written first, then previous year figure will be afterwards. अब यहाँ पर आपको दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर कंपनी की बैलेंस शीट है तो आपको दिया होगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ही है इसमें नेट प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो प्रॉफिट आप कैसे देखेंगे? सपोज लास्ट ईयर 40,000 एंड दिस ईयर 90,000. So you can see from 40 to 90 प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड बाय 50,000. सो यहाँ हम चेंज जो देखेंगे वो इनका डिफरेंस लेके चलेंगे कि ये जो 50,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है ये ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। और अगर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया होगा तो डायरेक्टली, अगर आपको याद हो लास्ट स्टेप सीखा था नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सारे सब पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद लास्ट स्टेप आता है। तो यहाँ से आप नेट प्रॉफिट लेकर चलेंगे आफ्टर टैक्स। सो दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, स्टार्ट आप इससे करेंगे। देन ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। व्हाट डज इट मीन ट्रांसफर टू रिजर्व? आपको याद होना चाहिए, मैंने एक चीज़ आपको रेशियो में सिखाई थी कि नेट प्रॉफिट हमारा अर्न हो जाता है आफ्टर टैक्स, बट उस नेट प्रॉफिट में से फिर कंपनीज क्या करती है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। और कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पूरा का पूरा ना पे करके कंपनी क्या करती है, रिटेन्ड अर्निंग्स करती है या कंपनी जनरल रिजर्व्स क्रिएट करती है। तो जो रिजर्व हमने ट्रांसफ़र किया था, पैसा हमने प्रॉफिट से रिजर्व्स में क्रिएट किया था, यानी हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, हमें उस एक्चुअल प्रॉफिट तक आना है जो ट्रांसफ़र करने से पहले का प्रॉफिट था। यानी हम रिजर्व्स का पैसा जो हमने माइनस किया था, प्रॉफिट में से निकाला था, अब हम उसे वापस प्रॉफिट में डाल रहे हैं। रिमेंबर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें हम रिजर्व्स प्लस कर देंगे जितने हमने प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जो टैक्स की हमने प्रोविजंस बनाए थे वो वापस से हम ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, जो हमने डिविडेंड डिसाइड किया है कि हम शेयर होल्डर्स को देंगे, वो हम वापस से ऐड, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड भी तो प्रॉफिट में से ही प्रोविजंस बनाए जाते हैं। डिविडेंड के लिए प्रोविजन बनाई जाती है, यानी जो नेक्स्ट ईयर फिर डिविडेंड पे किया जाएगा। इसी तरह इंटरिम डिविडेंड, तो ये सारी चीज़ें हमें वापस से प्रॉफिट में ऐड करनी है ताकि जिससे हम पहुंच सकें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस दे रखा है तो वो आपको क्या करना है, प्लस करना है, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो वो आपको क्या करनी है, माइनस करनी है। इस तरह आप पहुंचते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। So keep in your mind these all item you need to add. Now regarding the provision for tax, I have written over here current year tax will be added to find out the net profit before tax. अगर क्वेश्चन में आपको 2 years की फिगर गिवन है तो आप ये देखिए, ये कहलाता है आपका प्रीवियस ईयर और 2020 आपका कहलाएगा करंट ईयर। यानी करंट ईयर कहलाता है आपका, आपने टैक्स क्रिएट किया, इसको हम बोलते हैं टैक्स मेड। तो जो टैक्स मेड है वो हम करते हैं प्लस। कहाँ प्लस करेंगे आप, यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए करंट ईयर वाला टैक्स आप प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर वाला टैक्स ये कहलाता है पेड, ये हम माइनस करते हैं। कहाँ माइनस करेंगे, आपने ये जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया है लेस टैक्स पे, यहाँ पे कौन सा टैक्स पे करा है आपने, ये करेंगे आप प्रीवियस ईयर वाला टैक्स पे। नाउ लुक एट द सेकंड केस, इफ प्रोविजन फॉर टैक्स इज गिवन in the adjustment only, then it will be assumed that provision for tax and tax paid remains the same. यानी अगर आपको 2 years फिगर में provision for tax given नहीं है और सिर्फ adjustment point दे रखा है, तो हमें ये assume करके चलना है कि यही 20,000 टैक्स मेड भी है और पेड भी है। अब मेड में हम क्या लेते हैं कि करंट ईयर का हम इसे मान के चल रहे हैं। सो दिस विल बी एडेड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड दिस विल बी
considered as paid means minus again in the operating activity. But made को हम कब ऐड करते हैं? ये हम ऐड करते हैं, it will be added to the profit before tax in the operating activity and it will also be shown as tax paid in operating activities as last item. ये paid वाला last item होती है और made वाला आपका initially जब आप net profit before tax निकालते हैं तो आपको लेना चाहिए. सेम चीज यहाँ पर भी थी. ये करंट ईयर का मेड है, करंट ईयर का मेड है, यानी ये कब प्लस होगा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हुए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बिगनिंग में प्लस करना है. और ये पेमेंट कब होती है? दिस विल बी कंसिडर्ड एट द लास्ट आइटम. देयर इज वन मोर केस for the treatment of provision for tax which I'll explain later on. Now I'm starting the practical question of S.C. Sharma. Starting questions from 1 to 11 I think are of classification of the items into operating, investing and financing activity. यानी इन सारे questions में आपको simply सिर्फ identify करना है कि कौन सी items operating, investing या financing या cash equivalent में रखी जाएंगी. I am taking the practical question through the cash from operating activity. Look at this question number 12th B. From the following statement, calculate cash generated from the operating activities. I have explained you how to find out the cash flow from operating activities. So look at this question. We have gross profit, we have other incomes, total income, expenses, profit before tax, profit after tax, and the last item is balance in statement of profit and loss. This is 29,000. This balance in statement of P&L means net profit earned during the year 29,000. So हमें यहाँ से start करना पड़ेगा when a statement of profit and loss account is given to you. Start with this net profit. I explained you earlier how to find out the cash flow from operating activities. See, we want first net profit before tax and extraordinary item. For this, either we can make the working note or even here also we can show the items which are to be considered to find out the net profit before tax. Which are the items? See, I told you net profit during the year, then if general reserve is given to you, transfer to reserve, if provision for tax given, proposed dividend, these items are given, then you have to consider here. अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी आइटम हमें इसमें से given है. See again question. Net profit we have, proposed dividend we have, provision for tax. यानी हमें मेनली 3 आइटम्स को ध्यान में रखना है. एक है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम कंसिडर करेंगे. फिर एक है हमारे पास प्रपोज डिविडेंड. इंटीरियम डिविडेंड अगर दिया होगा तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया होगा, क्योंकि इंटीरियम डिविडेंड जो है इंस्टेंटली डिक्लेयर्ड होता है और पेड होता है. एनुअल जनरल मीटिंग में सडनली डिसाइड होता है करंट ईयर में और उसी टाइम वो पे भी किया जाता है. तो हमारे पास आइटम्स मेन कौन कौन सी हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड, डिविडेंड. इसके अलावा अगर कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है तो वो हमें लेना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन. I have made the format of the cash flow statement. Cash flow from operating activities for the year ended 31st March 2019. Particulars, details and the amount. Final amount column. How can we start, student? See side by side. Start with net profit earned during the year. It means net profit before tax and extraordinary item. Net profit before tax and extraordinary items. इसके लिए या तो हम नीचे वर्किंग नोट्स बना सकते हैं या यहाँ भी हम शो कर सकते हैं क्या क्या आइटम हम लेंगे. हम लेंगे नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स यानी प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रपोज्ड डिविडेंड. नेट प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में 29,000 है, ये ले लीजिए, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स ऑल्सो गिवन 10,000 प्लस प्रपोज डिविडेंड फॉर 2018 10,000. So consider these 3 items. You will get net profit before tax and extraordinary item. So we have now 49,000.
Afterwards, we have to add what I explained you. We have to add non-operating expense एंड नॉन कैश आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने प्लस करना है और नॉन कैश आइटम भी है कोई तो वो प्लस करना है. प्लीज रिमेंबर दीज आइटम्स विच आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. So we have to choose from the question which are the items which are of related to non-operating or non-cash. Like depreciation is a non-cash item, loss on sale of building is a non-operating, or goodwill written off. This is intangible asset written off. So ये चीज़ें हम consider करेंगे one by one. Write down here depreciation. Depreciation है हमारे पास 20,000. Then loss on sale of building. This is given 5,000. Then goodwill written off given by 8,000. Total is 33,000. Then less non-operating incomes. Which are the non-operating income, students? Find out non-operating incomes. Incomes are other income. Other income means non-operating income. So profit on sale of machinery 10,000. Profit on sale of machinery 10,000. Then dividend received. This is also other income. आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा बिकॉज अदर इनकम मीन्स अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में. सो डिविडेंड रिसीव्ड 3,000. 13,000 deducted, you will get 69,000. यहाँ तक आपका रिजल्ट था 82. So minus non-operating income 69,000. So you got it operating profit, but before working capital changes. यानी अभी हमारे पास वो प्रॉफिट आया है जिसमें हमने वर्किंग कैपिटल आइटम्स को कंसिडर नहीं किया. नाउ कंसिडर द वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स एंड करंट liabilities. How will you find out the current assets and current liabilities from the statement of P&L? See, commission accrued. Accrued means not received. Not received means current assets. Remember the concept. If current asset decrease, it will be plus. If increase, minus. But in case of current liability, if current liability increase plus, current liability decrease minus. So current liability there is a direct relation. Direct means increase है तो plus है, decrease है तो minus. But in case of current asset this is a reverse, inverse relation you can say. Decrease हो रही है तो plus, increase है तो minus. This is commission accrued. Commission accrued का क्या मतलब है? Current asset which is not received, asset which is not received. Last year figure we don't have. We have only current year figure 2019. तो जब last year की figure हमारे पास नहीं है तो we will assume that last year amount is 0. So 0 to 4,000 यानी ये क्या कहलाया जाएगा? 0 से 4,000 हो गया. It means this is increase. So increase को हमने क्या करना है? Increase in the current asset is less. So यहाँ पे हम लिखेंगे less commission accrued. Less commission accrued. This is the amount 4,000. यहाँ से आप 4,000 माइनस करेंगे, then you will get 65,000. Now you will get operating profit but after working capital changes. पहले हमारे पास operating profit क्या था? Before working capital changes. अब हमारे पास जो profit आया operating, this is after working capital changes. So this is the cash generated from operations. अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? दिस वॉज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड लास्ट स्टेप प्लीज फॉलो लेस टैक्स पेड.
See the amount of the tax paid. Provision for tax is given in the question 10,000. I told you one thing, if only current year's figure is given to us, यानी सिर्फ अगर हमें 1 ईयर का ही टैक्स दे रखा है तो यही हमारा कहलाएगा मेड और यही हमारा कहलाएगा पेड. मेड के टाइम पे हमने इसे प्लस किया था, अब पेड के टाइम पे हम इसे माइनस करेंगे. सो 10,000 विल बी डिडक्टेड. So your final answer is 55,000, and this final answer is, if it is coming in plus, then you have to write cash flow from operating activities. यानी अगर आपका रिजल्ट प्लस में है तो ये फ्लो फ्रॉम कहलाएगा, अगर माइनस में है तो ये कहलाएगा कैश यूज्ड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. Now look at next question. Question number 14th A I am taking. From the following information, calculate cash flow from operating activities. Informations we have, additional information. A piece of machinery costing 50,000 on which depreciation 20,000 had been charged was sold for rupees 10,000. Depreciation charged during the year was 18,000. Income tax 23,000 was paid during the year. Dividend paid during the year 36,000. So let's start this question. Again start with, write down here, cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities. Start with net profit before टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स. फाइन. सो टैक्स हमें कहाँ से, नेट प्रॉफिट हमें कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे. सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सरप्लस मीन्स जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है 71,000 and 89,000. 89,000 was in the previous year and current year 71. It means 89 से 71 हो रहा है. So this is decreasing in comparison of the previous year. Decreasing means this is given in minus, or you can say this is the net loss during the accounting period. So हम लेकर चलेंगे कैसे. हमारे पास पहले तो या तो इसके वर्किंग नोट्स बना लेते हैं हम नीचे. Look at the working notes. I am making working notes here. Working notes. Start with net profit after tax. अभी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स है. ये हम कैसे निकालेंगे, फिर से क्वेश्चन में देखेंगे. करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी आएगा 71,000 माइनस 89,000. दिस इज कमिंग इन माइनस. माइनस में हमारा रिजल्ट आ रहा है 18,000. माइनस मीन्स नेट लॉस. देन एड, रिमेंबर दोज आइटम्स. डिविडेंड वी हैव टू ऐड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अब हम देखेंगे कौन कौन सी आइटम्स हमें क्वेश्चन में गिवन है. वी हैव इनकम टैक्स 23,000, ओनली पेड इज गिवन. जब हमें एक ही आइटम गिवन है टैक्स की, इट विल बी एज्यूम्ड एज मेड और पेड बोथ. मेड के लिए हम इसको ऐड करेंगे. सो प्रोविजन फॉर टैक्स, और यू कैन राइट डाउन टैक्स मेड. प्रोविजन फॉर टैक्स 23,000 एंड देन डिविडेंड पेड. डिविडेंड पेड. अब सिर्फ हमें डिविडेंड पेड लेना है, यानी प्रीवियस ईयर का ही डिविडेंड हमें कंसिडर करना है 36,000. So this is coming 41,000. Consider this 41,000 here. Now becomes net profit before tax 41,000. Then we have to choose the non-operating expenses और नॉन कैश आइटम्स. हाउ कैन वी टेक इट, यहाँ हम देखते जाएंगे वन बाय वन. गुडविल इज गिवन 27 to 57. स्टूडेंट दिस इज तो इंक्रीज. अगर हम कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से,
गुडविल हमारी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने का मतलब है हमने गुडविल और परचेज करी। परचेजिंग गुडविल इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग में मैंने आपको क्या लिखवाया था, लुक एट द ऑपरेटिंग, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है जो भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर रिटर्न ऑफ रिड्यूस हो रही हैं तो हमें प्लस करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो हम इसे इसमें नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट, cash will not be taken, machinery is an investing activity. Regarding this point, a piece of machinery costing 50,000 on which depreciation 20,000 had been charged was sold for rupees 10,000. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी अगर हम सेल कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी प्रॉफिट और लॉस। हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस? 50,000 इज द कॉस्टिंग प्राइस। कॉस्ट में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास बन जाती है बुक वैल्यू। Remembered 50,000 and depreciation at 20,000. So 50 minus 20, 30,000 is the book value. 30,000 वाली मशीनरी को हमने सेल किया है 10,000 में. It means it is less price. Less price means there is a loss. So in this way you can take out the profit or loss. यहाँ पे हमारी बुक वैल्यू 30,000 है जिसे हमने 10,000 में सेल किया है, तो हमारे पास लॉस आ रहा है कितने का, 20,000 का। तो ये लॉस हमें कंसिडर करना है। देन आफ्टरवर्ड्स डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें डेप्रिसिएशन लेना है एज पर द फॉर्मेट। इफ़ यू रिमेंबर हमें नॉन कैश आइटम्स को प्लस करना होता है, तो डेप्रिसिएशन इज गोइंग टू बी एडेड। विच डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। जो ये वाला डेप्रिसिएशन दिया था, दिस वॉज डेप्रिसिएशन ओनली ऑन द मशीनरी विच बिजनेस हैज़ सोल्ड। ये डेप्रिसिएशन सिर्फ उस मशीनरी पे था जिसे हमने सेल किया, बट हमें जो डेप्रिसिएशन लेना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में वो ड्यूरिंग द ईयर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 18,000। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड 18,000। देन आफ्टरवर्ड्स हमने यहाँ से लॉस लिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस आया था, 20,000। आफ्टरवर्ड्स ये हमारा हो गया दोनों चीज़ें मिला के 38,000 एंड दिस इज कमिंग 979,000। दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो हमें माइनस करनी है। हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम देख लेते हैं। एज सच कोई ऑपरेटिंग हम इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन नहीं है। सो दिस बिकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल changes. Now the next thing is we have to choose the items of the working capital, current assets and current liabilities. फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, स्टॉक हमारा करंट एसेट है। 4,000 to 12,000 मीन्स इंक्रीज बाय 8,000। इंक्रीज क्या करेंगे, करंट एसेट इंक्रीज माइनस, सो यहाँ हम लिखेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री, क्योंकि ये करंट एसेट है तो इसे हम करें माइनस। माइनस के लिए हम लगा देंगे नेगेटिव साइन। कितने से करंट एसेट इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है 8,000 से। नेक्स्ट आफ्टर इन्वेंट्री, नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल 45 to 58। सो 45 से 58 अगेन इंक्रीज, दिस इज करंट एसेट एंड करंट एसेट इंक्रीज इज माइनस। सो नेक्स्ट हम लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं तो ये इंक्रीज है हमारे पास 13,000 माइनस। देन आफ्टरवर्ड्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ करंट लायबिलिटी 10,000 to 14,600। करंट लायबिलिटी इंक्रीज प्लस, सो करंट लायबिलिटी इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे तो हम इसे करेंगे प्लस, दिस इज बाय 4,600। सो नेट इम्पैक्ट हमारा आ रहा है 16,400 माइनस, और फाइनल यहाँ आ रहा है 62,600। दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। देन लास्ट स्टेप, टैक्स पेड। व्हाट अमाउंट टू बी कंसिडर फॉर द टैक्स पेड, 23,000। इसे ही हमने मेड माना है, इसे ही हम
पेड मानेंगे. सो द टैक्स पेड इज 23,000 एंड द फाइनल आंसर इज 39,600 एंड दिस इज नोन एज नेट कैश या कैश जनरेटेड, or you can write down cash flow from, anything you can write down, cash generated from operating activities. See students, this is the way. हमें आइटम्स सिलेक्ट करनी होती हैं, कौन सी नॉन कैश आइटम्स हैं, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, वो हमें प्लस करने हैं. कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो हमें माइनस करनी है. उसके बाद हम पहुंचते हैं आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू सिलेक्ट द करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी. एंड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, करंट एसेट्स में रिवर्स प्रोसेस होता है, इंक्रीज होने पर माइनस, डिक्रीज होने पर प्लस. बट करंट लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस. बट इसके लिए भी आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए व्हाट आर द करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. Now look at the next question, number 15th. X Limited made a profit 1,50,000 after charging depreciation 30,000 and transfer to general reserve. Students, normally the profit will be given to you after charging. यानी उसमें हम depreciation दिखा चुके थे, हम रिजर्व क्रिएट कर चुके थे, उसके बाद का प्रॉफिट. सो वी हैव टू एड बैक दिस जनरल रिजर्व इनटू दिस प्रॉफिट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. बिफोर टैक्स निकालने के लिए आई टोल्ड यू द 3 आइटम्स आर मेन. Provision for tax will be added, transfer to general reserve, and proposed dividend. So the proposed dividend we don't have in this question, and tax also not given in the question. So general reserve is given. So general reserve will be added to this profit to find out net profit before tax. Then adjustment points, non-cash item will be added, so depreciation will be added, goodwill written off will be added, gain means non-operating income, non-operating income will be subtracted. So you will get the operating profit before working capital changes. Afterwards, consider the items of the working capital. Debtors means current asset, increase. When current assets are increasing, they will be subtracted. So remember the concept, liability, current liability if increases plus, prepaid expenses, current asset increase minus, bill receivable decrease, bill receivable is a current asset, decrease means plus, bill payable is a current liability decrease minus, outstanding expenses liability, current liability decrease minus. यानी liabilities के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इंक्रीज पर प्लस, डिक्रीज में माइनस, बट करंट एसेट्स में रिवर्स है. ध्यान रखिएगा एंड यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. This is good question. Compute cash flow from operating activities from the following information of Rama Limited as on 31st March 2019. Here the profit for the year is given. In the previous question it was written profit after depreciation after transfer to general reserve. यहाँ after था तो हमने general reserve को plus किया. But when the profit is given for the year, it means the net profit before tax and before ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अब हमें इसे वापस से जनरल रिजर्व को इसमें प्लस नहीं करना क्योंकि हमने रिजर्व्स में अभी ट्रांसफर ही नहीं किया. सो हम ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कंसिडर नहीं करेंगे. स्टार्ट विद प्रॉफिट फॉर द ईयर 40,000. आई एम शोइंग यू द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 40,000 विच आई हैव टेकन फ्रॉम हियर. नेक्स्ट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिटर्न ऑफ. जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं अगर वो रिटर्न ऑफ हो रही हैं तो क्या होता है इनका प्लस, डेप्रिसिएशन प्लस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस, लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस प्लस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ प्लस. सो you will get ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये करने के बाद अब आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंसिडर करेंगे. गिवन 2 years फिगर 18 to 19. नॉर्मली हमें क्वेश्चन में करंट ईयर पहले गिवन होगा और प्रीवियस ईयर बाद में, बट ध्यान रखना है आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले है और फिर करंट ईयर. डेटर लास्ट ईयर 10,000, दिस ईयर 16,000. इट मीन्स इंक्रीजिंग.
इंक्रीजिंग करंट एसेट, क्या होगा इंक्रीज करंट एसेट, माइनस बिल रिसीवेबल, increase or decrease, this is decrease plus. So like that you have to consider all these item. Fine. Creditors, bills payable, outstanding expenses, these are the current liability. Increase plus, decrease minus. See, I'm going to show you the solution. Started with the net profit before tax, then depreciation. Profit is minus loss on sale of furniture plus computer software written off plus preliminary expenses. मीन्स कोई लिखने का प्रोसीजर नहीं है कि पहले हमें प्लस वाली आइटम्स लेनी है फिर माइनस वाली. वन बाय वन यू कैन कंसिडर द आइटम्स, बट रिमेंबर व्हाट शुड बी एडेड और व्हाट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. देन यू विल गेट कैश ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. ये आने के बाद आप कंसिडर करेंगे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन द करंट एसेट माइनस डिक्रीज इन द करंट एसेट plus. Like that you have to solve it. So you will get the final answer 73,000. If you stuck somewhere else, you can go through the illustrations also. Get the help from the illustration. Concept I have already cleared to you, what items to be considered. I have already explained the concept, what items to be added or subtracted in the operating activities. Keep those items in your mind. Now I am taking another question. Now I am going to take a question in which if the balance sheet is given to you, a very good question and different question, question number 22. From the following balance sheet of Alpha Limited as at 31st March 2018 and 19, calculate the cash flow from operating activities. Here the balance sheet, equity and liability side part and the assets parts are given to you. Besides these, notes to accounts are given. Students, when notes to accounts are given related to any specific point, then you have to go through the notes to accounts first. See, if reserve and surplus, it means the profit will be somewhere here. It is included in the reserves and surplus. So we have to see the note number 1. Note number 1 is reserves and surplus, general reserve, balance in statement of profit and loss account. Balance in statement of P&L means this is the difference you will get net profit or net loss earned or incurred during the year. Like last year 2018 it was negative 2000. It means last year the company has suffered with the loss of 2000 and current year company's balance left in the statement of P&L is 7000. So how do you know the company has earned the profit or loss? See, you have learnt that आपने अब तक सीखा है कि प्रॉफिट हमें जैसे करंट ईयर का गिवन होता है 2019 प्रीवियस ईयर 50,000 एंड 10,000. इट मीन्स कि करंट ईयर में इंक्रीज हो रहा है 40,000 प्लस. बट इफ दिस इज गिवन इन माइनस, यानी अगर ये वाला हमारे पास माइनस में है और ये प्लस में है तो आप क्या करेंगे? आप करंट में से प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं. इट मीन्स करंट ईयर कितना है 50,000, माइनस के लिए माइनस साइन. एंड अगेन लास्ट ईयर इट वाज नॉट प्रॉफिट, इट वाज अ लॉस, तो पुट द लॉस इनटू ब्रैकेट, यानी ये अपने आप में ही माइनस में है. तो माइनस और माइनस इट बिकम्स प्लस. सो 50,000 प्लस 10,000 इट मीन्स इस साल जो प्रॉफिट अर्न हुआ है कंपनी को वो हुआ है 60,000. एंड देयर इज अनदर वे ऑल्सो, यू कैन मेक द स्टेटमेंट ऑफ P&L. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट हेयर, opening balance of profit here and closing balance of profit here. Like यहाँ पे क्वेश्चन था हमारे पास opening balance 10,000 and here 50,000. So difference means profit earned during the year. This is the profit earned during the year. But in case अगर हमें लॉस हुआ है लास्ट ईयर तो उस लॉस को हम क्रेडिट में ना लिख के लिखेंगे डेबिट में, बिकॉज प्रॉफिट्स आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड. सो नेगेटिव बैलेंस मीन्स हम लेकर कैसे चलेंगे कि प्रीवियस ईयर का लॉस हुआ हमें 10,000 फाइन और करंट ईयर में हमारे पास बैलेंस है 50,000. इट मीन्स डिफरेंस क्या आया ड्यूरिंग द ईयर? अगर आप देखो तो ये 50 प्लस 10 60,000 आ रहा है. 60,000 का मतलब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो प्रॉफिट अर्नड हुआ वो हुआ है 60,000. दिस इज द प्रोसेस. सो हेयर 7,000 करंट ईयर में से हमें प्रीवियस ईयर का माइनस करना है, बट माइनस
2000 already given in minus, so minus becomes plus. 7 plus 2, it means 9000 is the profit earned during the year. Please remember this thing. Then ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया. रिजर्व्स आर क्रेडिटेड फ्रॉम 12 to 15. इट मीन्स लास्ट ईयर 12,000 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, इस साल 15 हो गया, इंक्रीज हुआ. इट मीन्स द डिफरेंस इज बाय 3000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. एंड to calculate the net profit before tax, we have to add general reserve into the profit. So I'm going to show you the solution, student. See, start with the net profit before tax. How this 12,000? ये आपका 12,000 कैसे आएगा? ये आएगा आपका, पहले ये प्रॉफिट आपने निकाला 9,000 प्लस 3,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 12,000. Now non-operating expense and non-operating incomes and non-cash items we need to find out. Look at here again. We have long-term borrowings debenture, although the debenture is a financing activity, but इस पे जो 10% interest है ये हमारा non operating expense है. So we have to find out 10% of 1 lakh. दोनों साल 1 lakh है. अगर चेंज होता फिगर में तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर ओपनिंग बैलेंस पर आपको इंटरेस्ट निकालना है. सो 10% ऑफ 1 lakh, दैट इज 10,000. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस विल बी एडेड, सो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल बी एडेड प्लस. देन आफ्टरवर्ड्स लुक एट हियर, वी हैव मशीनरी. मशीनरी हमारी है 1,50,000 to 1,70,000. 20,000 द मशीनरी इज इंक्रीजिंग. यहाँ पे अगर मशीनरी इंक्रीज हो रही है आपकी 20,000 से, तो ये आपकी हो रही है परचेज ऑफ मशीनरी. हमें नहीं लेनी परचेज ऑफ मशीनरी, हमें इस पर क्या लेना होता है? डेप्रिसिएशन. सो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वॉज 20,000. डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम 20,000, इट विल बी एडेड. अगर ये मशीनरी डिक्रीज हो रही होती स्टूडेंट 1,50,000 से 1,30,000 या 1,40,000, इट मीन्स अगर डेप्रिसिएशन नीचे नहीं दिया होता तो डिक्रीज इन द एसेट विल कंसिडर द डेप्रिसिएशन. रिमेंबर दिस थिंग. अगर ये मशीनरी डिक्रीज हो रही है तो या तो सेल होता है या डेप्रिसिएशन. सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास नीचे होगी. अगर सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है और वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स दिस इज अ डेप्रिसिएशन. तो यहाँ से हमें डेप्रिसिएशन मिलेगा. बट हियर वी हैव ऑलरेडी गिवन इन दिस क्वेश्चन. देन गुडविल 40 to 30,000 रिड्यूस हो रही है. रिड्यूस मीन्स रिटर्न ऑफ, सो इट विल बी एडेड. सो गुडविल को भी हम गुडविल रिटर्न ऑफ 10,000 प्लस करेंगे. देन नेक्स्ट इज 10% इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, बट इस पे जो 10% इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. सो नॉन ऑपरेटिंग इनकम विल बी डिडक्टेड. सो it is given an information investment were purchased on 31st March 2019. यानी हमने at the end of the current year investment की है. तो पूरे साल हमारे पास जो अमाउंट था वो 80,000 था. कहने का मतलब है कि ये 80,000 टिल द एंड तक था. ये जो बैलेंस इंक्रीज हुआ ये कब हुआ? ये हमने करंट ईयर के एंड में जाके इंक्रीज हुआ. तो हमारे पास जो पूरा साल अमाउंट था 80,000, आप इस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 10%. दिस इज 8,000. सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8,000 बीइंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज डिडक्टिंग माइनस. सो इन दिस वे यू विल गेट द कैश ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू select the current assets and current liabilities. It is very easier when the balance sheet is given to you. You can easily take out the current assets and current liabilities. Current assets, inventories, trade receivable, cash and cash equivalent हम नहीं लेते because it's a part of last step of the cash flow. कैश फ्लो में जब हम नेट रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वहाँ पर ये कंसिडर किया जाता है. सो इन्वेंट्रीज आपने लेनी है 40 to 50, इंक्रीज हो रही हैं तो माइनस. 48 to 39 डिक्रीज प्लस. यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस हो गया. देन चूज द करंट लाइबिलिटीज. चूज द करंट लाइबिलिटीज. ट्रेड पेबल्स 50 to 70,000 इंक्रीज प्लस. 10 to 18,000 इंक्रीज अगेन प्लस. अदर करंट लाइबिलिटीज.
So look at here students, solution. ट्रेड रिसीवेबल हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी है इंक्रीज है तो प्लस, अदर लायबिलिटी इंक्रीज है तो प्लस, इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज है तो माइनस, ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज है तो प्लस. ये कंसिडर करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 71,000. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.